کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے۔ حیا جاوید کا سلام قبول کریں۔ 15 ستمبر 2026 عیسوی بمطابق 10 ربیع الاول 1446 ہجری بروز اتوار۔ ناظرین ڈالتے ہیں آج کے خبر نامے پہ ایک نظر۔ چکتا پر پٹن میں فوج و فورسز اور جنگجوؤں کے مابین مسلح تصادم آرائی، 3 عدم شناخت ملیٹنٹ از جان، اسلحہ بھی برآمد، آپریشن جاری۔ کشتواڑ میں آفیسر سمیت 2 فوجی اہلکاروں کی ہلاکت کے بعد تلاشی آپریشن تیسرے روز میں داخل۔ ملیٹنٹوں کو جموں کشمیر کے انتخابات میں خلل ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سیکورٹی فورسز ملک دشمن عناصر کے عزائم کو ناکام بنانے کے لیے کافی چوکس۔ آئی جی پی کشمیر کل دیر شام پولیس اور سیکورٹی فورسز کو یہ ٹاپر موومنٹ کی اطلاع ملی تھی، تو اسی سلسلے میں اس ایریا میں جو ہے سرچ آپریشن جاری کیا گیا اور اس علاقے کا حصار کیا گیا۔ حصار کے دوران جب سیکورٹی فورسز آگے بڑھ رہے تھے تو ان کے اندر سے شدید طور پہ گولی باری ہوئی اور اس کے بعد ایک آپریشن جو ہے یہاں پہ انکاؤنٹر جو ہے وہ سٹارٹ ہوا، تو سیکورٹی فورسز نے علاقے کا حصار کرا ہوا اور آپریشن ابھی بھی جاری ہے۔ کچھ باڈیز سائٹ ہو رہی ہیں چونکہ یہ آپریشن مکمل نہیں ہے اور کچھ جو ہے ٹیکٹیکل اور آپریشنل جو میٹرز ہوتے ہیں وہ پراسرار رہتے ہیں۔ جب یہ آپریشن کنکلوڈ ہو جائے گا تو باقی تفصیلات جو ہے آپ سے ساجھا کر دیں۔ ابھی جو یہ آپریشن ہے ظاہر سی بات ہے سیکورٹی فورسز کو ان پٹ تھے ان کی موومنٹ کا، باقی جو ہے وہ تفتیش کا موضوع ہے، وہ بعد میں آپ کو اس چیز کو واضح کیا جائے گا۔ ابھی یہ بہت پری میچور ہے یہاں پہ، ہاں بس اتنا اطلاع تھا کہ یہاں پہ ان کا موومنٹ تھا اور سرکشا بلوں نے اس ایریے کا جو حصار کرتے ہوئے ان کو ٹریس ڈاؤن کر رہے تھے، اسی اسنا میں یہ انکاؤنٹر شروع ہوا ہے۔ ابھی اس کی تصدیق جب مکمل ہوگا آپریشن تب بتائی جائے گی۔ کشتواڑ تصادم آرائی میں جان بحق ہوئے فوجیوں کو خراج تحسین۔ آرمی 10 سیکٹر کمانڈر اور ایس ایس پی بارامولہ نے مشترکہ طور پر پریس کانفرنس میں تاپر بارامولہ میں تصادم آرائی کی پوری تفصیل پیش کرتے ہوئے کہا۔ To use this opportunity to express my deep respect and reverence for our brave colleagues who made the supreme sacrifice in the highest traditions of the Indian Army in Operation Sharp Purshal in Kishtwar of Jammu Division yesterday. We deeply respect their sacrifice, which shall continue to inspire us to render selfless service to our great nation. For some time now, we have been receiving inputs about the movement of unidentified terrorists in the general area of Kriri in Baramulla district. Yesterday, on the 13th of September, we received a specific intelligence input from INT agencies about the movement of some unidentified terrorists in the general area of Chaktapar. Accordingly, a joint team of the Army, the Jammu and Kashmir Police, the SOG and the SSB were mobilized at 22:15 hours. When our parties and columns were in the process of establishing the cordon, terrorists hiding inside a disused building fired on our columns at approximately 23:15 hours. As per standard operating procedures, the fire was returned effectively. The cordon was tightened and additional reinforcements were inducted. The terrorists continued to bring down incessant heavy fire upon our troops throughout the night, which was effectively countered. The operation continued into the morning when our troops, in a very professional manner, engaged the terrorists
and neutralize them without causing any collateral damage to civilian life or property. In this operation, a total of 3 hardcore terrorists were neutralized and a large quantity of warlike stores were recovered. The identity of the 3 terrorists is yet to be ascertained. Keeping in mind the forthcoming sensitive events of the Union Territory, this operation assumes significant importance and is a notable success for our security forces and a major disruption for Pakistan's nefarious designs in the Kashmir Valley. Here I would like to assure everyone that the Chinar Corps and the Kilo Force, in coordination with all security forces, continues to remain committed to maintaining peace in the area and to ensure that daily routine activities are conducted in a peaceful manner. Thank you and Jai Hind. रजौरी के नौशहरा सेक्टर में फौजी एहलकारों ने दरअंदाजी की एक कोशिश को नाकाम बनाने का दावा किया है। दिफाई ज़राए ने बताया कि नौशहरा सेक्टर के धारा गोचर इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के माबैन गोलियों का तबादला हुआ। उन्होंने कहा कि इब्तिदाई फायरिंग में फौज का जूनियर कमिश्नर्ड ऑफिसर जख्मी हुआ, जिसे इलाज मालजी की खातिर नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया। फौज ने एक वसी जंगलाती इलाके को मुहासरे में लेकर फरार होने के रास्तों पर पहरे बिठा दिए हैं। आखिरी इत्तलात मौसूल होने तक इलाके में ऑपरेशन जारी था। इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात का इंतज़ार है। खानदानी राज की सियासत ने जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया। रियासती दर्जा की बहाली के लिए हम वादा बंद। मिलिटेंसी आखिरी सांस ले रही है। असम्बली इंतखाबात जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। वो दिन गए जब गैर एलानिया कर्फ्यू लगाया जाता था। सियासतदान लाल चौक जाने से डरते थे, अब बरसों अमन कायम है। हम मिलकर एक महफूज और खुशहाल जम्मू कश्मीर बनाएंगे और ये हमारी ज़मानत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। जम्मू कश्मीर में असम्बली इंतखाबात का पहला मरहला नज़दीक आते ही जम्मू के मुख्तलिफ हिस्सों में मिलिटेंट मुखालिफ ऑपरेशनों में तेज़ी लाई गई। असम्बली इंतखाबात के आज़ादाना और मुनसिफाना इनेकात के लिए सिर्फ संगीन मुकदमात वाले कुछ अफराद को एहतियाती हिरासत में रखा गया है। श्रीनगर पुलिस। हम जानते हैं कि जो असम्बली यहाँ बनने जा रही है इसमें वो ताकत नहीं जो हमें चाहिए, लेकिन हम इस असम्बली को वापस ताकतवर बनाएंगे। जम्मू कश्मीर के अवाम 10 साल से राहत के इंतज़ार में नेशनल कॉन्फ्रेंस बीजेपी के खिलाफ लड़ने के साथ लोगों को राहत पहुँचाने के लिए पुरअज़म। उमर अब्दुल्ला। वज़ीर आज़म की तीसरी मुद्दत के दौरान जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी में इजाफा। दुनिया को बताना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ ठीक है। वादी कश्मीर के लोगों ने पिछले 10 सालों में बहुत सारी मुसीबतें झेली और फिर भी साबित कदम रहे। हर चीज़ का मुकाबला दिलेरी के साथ किया। सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी भी जम्मू कश्मीर में ही है। 65% असामियाँ खाली होने के बावजूद भी वो पूरी नहीं की गई। चेयरपर्सन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म प्रदेश कांग्रेस कमेटी का बयान। 10 साल बाद ये मौका आया है कि जम्मू कश्मीर अपनी खुद की सरकार चुनेगा। 10 साल बाद ये मौका आया है कि करीब 2 करोड़ लोग अपनी खुद की सरकार चुनेंगे, अपने वोट के उस अधिकार को यूज करेंगे जो बाकी देश करता आ रहा है। इन 10 सालों में आपने बहुत कुछ झेला है। इन 10 सालों में आपने करप्शन झेला। इन 10 सालों में आपने बेरोजगारी झेली। इन 10 सालों में आपने महिला असुरक्षा झेली। इन 10 सालों में आपने महंगी बिजली, महंगा पानी, बिजली की कटौती, बहुत सारी चीजें झेली। और सबसे पहले तो सलाम है आप सब लोगों को, क्योंकि ये झेल कर और उसके बाद भी खड़े रहना
आसान नहीं होता है। सबसे पहले तो पिछले 10 सालों में सारा रूल जो है वो बीजेपी का रहा है। 5 साल सरकार, एलजी का रूल, और एक ऐसे व्यक्ति को आपके सर पे लाके बिठा दिया जिसने आपके हक, आपके रिसोर्सेज, आपकी चीजों को बाहरियों को दिया। The reality is that the rampant corruption that Jammu and Kashmir has seen under the present Lieutenant Governor is a blot for any democracy. और मुझे ऐसा लगता है कि अब जब हम चुनाव के मुहाने पर आकर खड़े हैं तो जरूर लोग उसका हिसाब करेंगे, जरूर लोग उस पर सवाल पूछेंगे, और मैं सिलसिलेवार तरीके से कुछ चीजें आपके सामने रखना चाहती हूं। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में हर चीज का दाम बढ़ा है, बाकी देश में भी बढ़ा है, लेकिन आपके लिए वो दिक्कतें और ज्यादा हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस देश में दूसरे नंबर पर आपकी बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी और महंगाई का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बड़ा लीथल होता है, और उसके चलते आपको जो दिक्कतें हुई है उसके बारे में मैं अगले 5-10 मिनट में जरूर बात करूंगी। पानी की किल्लत, महंगी बिजली, 65% of government jobs are lying vacant and there is no plan to fill these government jobs. बेरोजगारी सबको पता है, और उसके बाद 65% गवर्नमेंट जॉब्स खाली क्यों है, इसका जवाब तो सिर्फ एलजी और उनके दिल्ली में बैठे हुए आका दे सकते हैं। मस्जिद नबी में एक हफ्ते के दौरान 54 लाख ज़ायरीन की आमद। मदीना मुनव्वरा में गर्म मौसम के बावजूद ज़ायरीन की बड़ी तादाद पहुंच रही है। गुज़श्ता कई दिनों से बिजली और पानी की सप्लाई में अचानक खलल, शहरी व दिही आबादी परेशान, मुतल्लिका महकमा जात के आला अफसरान से मुदाखलत की अपील। जम्मू कश्मीर के अवाम अपने हुकूक की वापसी के लिए पुरज़म और मुत्तहिद। मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत मुसलमानों को हर सतह पर हरासा किया जा रहा है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। बीजेपी और पीडीपी कोलिशन सरकार में हमने 12,000 FIR वापस लिए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के इक़्तिदार में नौजवानों पर FIR नाफिज किए गए। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती। देखिए, हर जगह नौजवान समझते हैं कि पीडीपी वाहिद जमात है जिसने जवानों की बात की है, जवानों की हिफाजत की है, जवानों को बंदूकों के बीच में से बाहर निकाला है। और आज भी मैं उमर साहब को चैलेंज देती हूँ, मैं कहती हूँ आपने अपने दौर में हजारों नौजवानों के खिलाफ FIR दर्ज किए। महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार के साथ हाथ मिला के 12,000 FIR वापस लिए। अगर उसको जुर्रत है तो मुझे बताइए, एक FIR वापस करके दिखा दे मुझे। दूसरी बात, मैंने बीजेपी सरकार में रसाना में केस हुआ, न सिर्फ 2 मिनिस्टर ड्रॉप किए बल्कि 8 लोगों को उम्र कैद की सजा दिलाई। आज उन 2 मिनिस्टरों में लाल सिंह एक मिनिस्टर है जिसकी वकालत, जिसके लिए वोट मांगने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग जाते हैं। अगर जरूरत है तो उसके खिलाफ बात करके दिखा दे। देखिए, गुलाम नबी आजाद साहब तो ये भी कहते हैं कि जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं वो सारे पहले हिंदू थे, तो अब उनकी बात का मैं क्या जवाब दूं। और आखिर में ये खबर कि अंजुमन के रुकन और सीनियर सहाफ़ी अरशद डार की दादी का कल शाम इंतकाल हुआ। नमाज जनाजा कल शाम ही 9:30 बजे बागवां पोरा बरबरशाह श्रीनगर में अदा की गई। अंजुमन उर्दू सहाफ़त ने कल शाम कश्मीर ऑनलाइन को अपने पैगाम में कहा है कि अंजुमन उर्दू सहाफ़त के तमाम अरकान की जानिब से हम मरहुमा की मग़फ़िरत और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम के लिए दुआगो है। हम इस गम की घड़ी में अरशद डार और उनके अहल खाना के दुख में शरीक है। अल्लाह ताला इन्हें सब्र जमील अता फरमाए और इस कठिन वक्त में इन्हें अपनी रहमत और ताकत से नवाजे। नाज़रीन, ये था आज का खबरनामा। दीजिए मेज़बान हाया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।